Very good afternoon all and welcome to another live session of Technology Talk. This is your host Vineet Navaikar and this session today is a special session because we are celebrating Christmas today. So from Hikvision India, a very Merry Christmas to all of our partners, all of our viewers of Technology Talk. आप सभी को Merry Christmas Hikvision India की तरफ से कैसे हो आप सब? So today we are talking on the EDVR question and answer, the most common FAQ on EDVR. But as well as this session is most special session for all of us. We are in the December and we are today going to celebrate a Christmas with all of you. So Merry Christmas to all of you. बहुत सारे पार्टनर जैसे हमेशा इस 3 बजे जो ज्वाइन होते हैं इस टेक्नोलॉजी टॉक में, आज भी सब लोग यहाँ पे ज्वाइन है. Come on, please type in the chat section Merry Christmas and please type your company name from where you are, which cities you are belong from. आप कहाँ से हो इस टेक्नोलॉजी टॉक को connected. Come on everyone, I'm waiting for your reply. And then let's start you this special surprising session and we are going to celebrate the Christmas with all of our partners. So let's start. जैसे कि बहुत सारे लोग अभी join हुए हैं and they are typing the AIM surveillance जो रांची से यहाँ पे हमारे पार्टनर कनेक्टेड है. वेलकम सर. देन जीनेट कम्युनिकेशंस, ये भी हमारे पार्टनर ज्वाइन हुए हैं इस टेक्नोलॉजी टॉक में. जैन इलेक्ट्रिकल विशाखापट्टनम से है. वी कैम सॉल्यूशन चेन्नई से है. मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज योर लव दैट यू आर just sharing with us always in this technology talk. So today this special session where we are celebrating the Christmas, but as well as one more big announcement for all of you. Yes, what is that announcement? So everyone know that if you are going to watch this today's session up to a 600 seconds, yes, 600 seconds तक आप आज का जो सेशन ये कंटिन्यू देखते हो, आज का जो लाइव वेबिनार आप 600 सेकंड तक देखते हो, then you will get a 6,000 reward point on your mobile app. So definitely this is so much of excited session जो आपके लिए Hikvision इंडिया लेके आया है. बहुत सारे rewards point इस वेबिनार सेशन को आप कंटिन्यू 600 सेकंड्स तक देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे बहुत सारे rewards point वहां पे आज मिलने वाले हैं. So hope you can enjoy this reward point also and definitely we are also going to talk on the latest launch product that is EDVR. In last session we have covered the EDVR. What was the EDVR? EDVR क्या है, exactly क्या क्या फीचर्स है. आज भी हम उसको देखने वाले हैं कि EDVR exactly क्या प्रोडक्ट है, उसकी फीचर्स क्या है. बट this session is specially organized for those who have asked this query in the last time. लास्ट सेशन में हमने EDVR के बारे में आपको बताया था. बहुत सारे लोगों के सवाल जो है वहां पे उनके आंसर मैं दे नहीं पाया था, तो इसके लिए आप सभी के लिए आज का ये स्पेशल सेशन लेके आए हो जो EDVR के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है जो हमारे पार्टनर्स पूछ रहे हैं, उनके ऊपर मैं आप सभी के लिए वहां पे आंसर्स लेके आया हूँ. सो ऑल आर कनेक्टेड विद मी एंड होप आज आपको ये क्रिसमस स्पेशल सेलिब्रेशन सेटअप बहुत अच्छा लगा होगा. एंड डेफिनेटली दिस इज जॉय, हैप्पीनेस एंड द हॉलिडे सीजन वी आर एंजॉयिंग and this is the last sessions of this technology talk of the year 2022 which I am going to celebrate with you a Christmas. So very happy to all of you, a Merry Christmas to all of you and we are talking about the points जहाँ पे हम बात कर सकते हैं इस पॉइंट्स को लेके. 600 सेकेंड्स आप इस वेबिनार को देखते हो तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको 6000 पॉइंट्स मिलने वाला है. सो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड पॉइंट भी है, उसके साथ साथ EDVR जो सबसे रिसेंटली एक नया बेस्ट प्रोडक्ट, सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो Hikvision ने मार्केट में यहाँ पे लॉन्च की है, उसके ऊपर हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए ये EDVR है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में है. डेफिनेटली यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा आप चैट बॉक्स में वहां पे डाल सकते हो. Our team will try to give you answer at the back end. As well as I will come up with you some presentation through which I will get you clear understanding about the answers of most common question related with EDVR. So hope you all are ready with me and you are enjoying this session. So बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मेरी क्रिसमस कर रहे हैं. मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ आवर पार्टनर्स हु आर कनेक्टेड. कुछ लोग थोड़े से लेट ज्वाइन हुए हैं. शिव टेक्नो सॉल्यूशन जो है मिस्टर संजय जी नैनोटेक सिस्टम तमिलनाडु से है. वेलकम टू दिस टेक्नोलॉजी टॉक. माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर मनीष जी हैं जो यहाँ पे भाईंदर से कनेक्टेड है. सो JSC टेक्नोलॉजीज विशाल एंटरप्राइजेस हरियाणा से ज्वाइन है. सो पैन इंडिया से, पूरे इंडिया से, भारत भर से जो
हमारे जो पार्टनर्स जो आप ज्वाइन हुए हो इस प्रामा इंडिया ऐप के ऊपर, where we are going to discuss on the eSSD DVR. So thank you so much for your love, your join, and you're providing the time to talk on this technology stuff. So we will begin with session. One more time I will give you announcement. अगर 10 मिनट तक कंटिन्यू वहां पे आप सेशन देखते हो, that is 600 सेकंड तक आप ये सेशन देखते हो, you will get a 6000 reward points. Okay, so this is Vinit Narvekar, your host of Technology Talk, and we are going to start eDVR most common question and FAQ. Hope you all are ready with me. So देखते हैं प्रेजेंटेशन के मोड के ऊपर जाते हैं कि प्रेजेंटेशन के जरिए क्या क्या क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं eDVR के। बट सबसे पहली बात कि लास्ट सेशन बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था, कुछ लोगों ने लास्ट सेशन हमारा जो है eDVR इंट्रोडक्शन वो मिस किया था। उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द eDVR. Okay, so we are going to start with the presentation part. Okay, all right. So on your screen you can view that. आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो the E generation DVR with SSD inside. One of the best product which is launched by the Hikvision on this year. It is a Hikvision eDVR with eSSD technologies. So this particularly DVR you can look twice. It's a very compact DVR. Only a small SSD available inside of this. So we will understand what exactly the features for this DVR. फीचर्स क्या रहेंगे? अगर फीचर्स की अगर बात करने के लिए जाए, so what it contains, it consists of the embedded SSD technology. Okay, that means the technology is embedded, SSD is completely embedded inside on the DVR, as well as there is a eco-friendly. This complete functionality. This product is completely eco-friendly. That means consumes a lots of power because SSD is used over here instead of your hard disk drive. And during storage, yes, the storage which is happening over there, which is the most reliable and most in the compact size, that lots of storage files will get saved, as well as easy to set up. This DVR comes with the easy UI operation, so it's easy to set up directly. Just open this DVR from the box, connect your cable, your DVR will get started. Then efficient video analytics. Yes, the most common video analytics, that is a motion detection 2.0, and vehicle and human detection is also available inside this DVR. So based on that, it provides the smart motion detection, that is a motion detection 2.0 is also available. So कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन फीचर हमें यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हो SSD टेक्नोलॉजी है, पावर कंजम्पशन DVR अच्छे से करता है, स्टोरेज भी इसका बहुत लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा है, प्लस यहाँ पे बेहतरीन वहाँ पे स्टोरेज सपोर्ट रिकॉर्डिंग के लिए मिल जाता है, इजी टू सेटअप करने के लिए इजी है, एंड वीडियो एनालिटिक के साथ ये आपको फंक्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। So talking about the more about this DVR कि कैसे है इस DVR के अंदर जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका जो SSD चिप है ये एम्बेड किया हुआ है। So as comparatively with normal लैपटॉप की अगर बात करोगे तो बहुत सारे लोग SSD वहां पे यूज करते हैं, उनको पता है, बट व्हाट अबाउट द सर्विलेंस प्रोडक्ट, जहाँ पे CCTV के इंडस्ट्री में ये जो DVR है इसके अंदर आपको ये SSD अगर वहां पे प्रोवाइड करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। क्या वो SSD उस DVR के साथ कंपैटिबल होगा? क्या वो SSD आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा? So all and all this, Hikvision has developed this eSSD technology where एक SSD है जो आपके बोर्ड के ऊपर वहां पे एम्बेडेड किया हुआ है, और इसी चिप के अंदर वहां पे उस SSD का कंट्रोलर है, NAND है, फर्मवेयर है। So everything is there inside only one single chip of the SSD. टॉकिंग अबाउट द मोर प्रोडक्ट की बात करें, जहां पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपको 4 चैनल में, एक चैनल में ये DVR आता है जहां पे आपका 1080p लाइट एट द 15 FPS तक रिकॉर्डिंग रिजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट के साथ सपोर्ट करता है, जो आपको 2 वीक तक की रिकॉर्डिंग देता है। But if you require the more recording resolution, you will get the 4MP Lite DVR also with the 4 channel, that is a HQ-HIP model, where you can see this variant also is available. पावर कंजम्पशन की बात करें तो नॉर्मल 4 चैनल का DVR है 5.4 वैट, बहुत ही बेहतरीन पावर कंजम्पशन हो रहा है, 5.4 वैट तक पावर कंज्यूम कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आपका जो नॉर्मल DVR जब आप परचेज करते हो हार्ड डिस्क के साथ लगाते हो 10 से 11 वैट तक वहां पे पावर प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना बिजली की बचत भी वहां पे हो रही है। 24/7 पे प्रोडक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं पावर कंजम्पशन की मदद से बहुत सारी कॉस्ट और पावर सेविंग आपके यहाँ पे हो जाएगी। एनालिटिकल फीचर आप देख सकते हो, वो तो बहुत सारे इसके अंदर आ ही रहे। सो HDTVI वहां पे HDTVI सपोर्ट करता है, ASD अदर कोई टेक्नोलॉजीज है वो सपोर्ट वहां पे करेगी। सो सेल्फ एडेप्टिव DVR है बेसिकली, ये सेल्फ एडेप्टिव DVR के साथ बहुत सारे मोशन डिटेक्शन 2.0 वगैरह ये फंक्शंस आ रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दिस प्रोडक्ट। जिन लोगों ने लास्ट सेशन मिस किया होगा उनको पता चला होगा एग्जैक्टली हाउ इट इज प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट ये,
SSD DVR. Yes, DVR के अंदर कहीं ना कहीं आपको SSD दिया है, but this SSD it's not a common SSD, it's an embedded SSD technology is adapted over here, जो सर्विलेंस के अकॉर्डिंग वहां पे बहुत ही बेहतरीन SSD टेक्नोलॉजी है। एंड नॉर्मल SSD की बात करोगे तो कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ये SSD प्रोवाइड की है, which can be only and only work specially for your CCTV surveillance technologies. So कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे इंडस्ट्री के लिए ये SSD DVR हिकविजन ने वहां पे प्रोवाइड किया है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट दिस व्हाट एग्जैक्टली द SSD DVR, क्या है ये SSD DVR, ये हमने देखा। Now we are moving to the agenda of the today's session, that is the most common effective. I will remind you again, 10 मिनट्स तक ये वेबिनार अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं 6000 पॉइंट्स जो है आप सभी को वहां पे मिलेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, बी देयर विथ मी कंटिन्यूअसली लाइव ऑन दिस टेक्नोलॉजी टॉक, talking about the most common question and most common queries FAQ. So one by one स्लाइड के थ्रू हम FAQs देखते हैं कि जो लोग अभी तक इस EDVR को यूज नहीं किए हैं उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या जो लोगों को अभी और ज्यादा जानकारी उनको चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनके भी कंसेप्ट जो है इस SSD DVR के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। ओके, मूविंग टू द प्रेजेंटेशन पार्ट नाउ। ओके, आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ EDVR। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द SSD फॉर कंज्यूमर यूज एंड सिक्योरिटी यूज। जैसे कि मैंने कहा कि ये SSD DVR है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए DVR हम यूज करते हैं, तो कंज्यूमर SSD का और नॉर्मल SSD में क्या डिफरेंस होता है। सो कहीं ना कहीं आपके इस प्रोडक्ट में ये DVR में जहां पे हमने जो यूज किया है वो सर्विलेंस SSD यूज किया है, आप देख सकते हो कि SSD लेवल है, SSD फॉर कंज्यूमर्स एंड SSD फॉर सिक्योरिटी। दोनों में हमने डिफरेंस बताया है दैट ऑर्डिनरी NAND जो है, NANड फ्लैश मेमोरी, फ्लैश सेल्स यहाँ के अंदर आपके SSD में वहां पे अवेलेबल रहती है, रीड एंड राइट कैपेसिटी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, ये कहीं ना कहीं आपके सर्विलेंस या सिक्योरिटी SSD जो है वहां पे अवेलेबल है, उसके अंदर ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही बेहतरीन फीचर के साथ आपको मिल जाती है। So high capability for the reading writing, high stability will be available with the SSD of surveillance as comparatively a consumer SSD. वर्किंग एबिलिटी की बात करें कि कंज्यूमर SSD जो है नॉर्मली 8 घंटे तक 8 आवर्स काम कर सकती है, बट कहीं ना कहीं एज कंपेरेटिवली बात करोगे आपकी जो ये सर्विलेंस SSD है ये 24/7 तक वहां पे चल सकती है। अपार्ट फ्रॉम द पावर, yes, power consumption is also very much high for the consumer SSD, but surveillance SSD the power consumption is very less. सो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वहां पे बहुत ही अलग अलग फीचर्स वहां पे नजर आ रहे हैं आपको, एज कंपेयर किया कि नॉर्मल आपका जो कंज्यूमर SSD आता है और ये नई टेक्नोलॉजी जो है eSSD टेक्नोलॉजी है, ये सर्विलेंस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे यूज की क्या फायदे है, क्योंकि ये जो DVR है आपका 24/7 चलने वाला है, उस 24/7 वर्किंग के लिए आपका SSD भी वर्किंग वैसा होना चाहिए। So definitely Hikvision is also itself the manufacturer of SSD and definitely we are providing the best product for all of us. So आपको पता चला होगा यहाँ से इस स्क्रीन से कि एग्जैक्टली ये जो है टेक्नोलॉजी SSD बेस है, क्या इसकी SSD जो है ये वो कंपैटिबल है, अगर मेरा ये DVR 24/7 चलेगा क्या ये SSD तब तक विथस्टैंड कर पाएगी? यस, डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट विल कंटिन्यूअसली वर्क। सो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है, होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड कि अलग अलग क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। देन अगेन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओके दिस इज SSD टेक्नोलॉजी। जैसे हार्ड डिस्क की बात करें कि हार्ड डिस्क के अंदर हमने हार्ड डिस्क लगाया, कंटिन्यूअसली रीड राइट होती रहती है, कंटिन्यूअसली इट्स गेटिंग रीडिंग एंड राइटिंग। सो हार्डली फॉर 1 ईयर 2 इयर्स और 3 इयर्स हार्ड डिस्क के अंदर वहां पे प्लेटर्स रहते हैं, एक निडल रहता है जहां पे कंटिन्यूअसली वो राइटिंग मैकेनिज्म वहां पे होती रहती है। तो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क के अंदर बैड सेक्टर्स या हार्ड डिस्क डैमेज होने के विद इन ईयर्स बहुत सारे चांसेस होते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं SSD में वैसा कुछ है, या SSD कितने लाइफ स्पैन तक ये चलता रहेगा। सो आई विल गोइंग टू हाईलाइट दिस क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन रहेगा, इज देयर लिमिट ऑन द रीड राइट लाइफ स्पैन ऑफ द SSD। ओके, SSD के रीड राइट लाइफ स्पैन में कोई कुछ लिमिट है या नहीं है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन दिस क्वेश्चन। So yes, the read write limit of the SSD NAND is at least
1000 टाइम्स, यस 1000 टाइम्स तक ये एसएसडी जो है ये रीड राइट कर सकती है। इसका एसएसडी नैंड जो है ये रीड राइट हो सकता है। दैट मीन्स ये एसएसडी के अंदर कहीं ना कहीं मैकेनिकल पार्ट वगैरह नहीं रहेंगे, एक डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा जो है राइट होता रहेगा इस एसएसडी के ऊपर। सो लाइफ स्पैन जो है ये वहां पे कहीं ना कहीं देखने के लिए जाओगे तो 12 ईयर्स, अबाउट 10 to 12 ईयर्स तक का जो लाइफ स्पैन है ये आपको एसएसडी में मिलता है। So as a standard company policy, we offer a 2-year warranty for the whole DVR। पूरे DVR को जहाँ पे 2 years वारंटी जो स्टैंडर्ड वारंटी हमने प्रोवाइड की है, बट कोई चिंता की जरूरत है नहीं क्योंकि एसएसडी को आपको मिल रहा है 10 years का वहां पे लाइफ स्पैन। सो बहुत लॉन्ग टर्म तक ये प्रोडक्ट चलने वाला है। आपकी एसएसडी बहुत ही बेहतरीन वे से काम करेगी, रीड राइट स्पीड अच्छी है, स्टोरेज इसका हाई परफॉर्मेंस वहां पे मिल रहा है और 24/7 ये प्रोडक्ट कंटिन्यूस वहां पे चलने वाला है। सो यू हैव अंडरस्टैंड कि सबसे पहला हमने देखा था कि एसएसडी कंज्यूमर एसएसडी से कुछ अलग है। यस, दिस इज द सर्विलेंस टाइप्स ऑफ एसएसडी व्हिच गिव यू अ वेरी हाई परफॉर्मेंस। सेकेंडली, इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट अबाउट रीड राइट और द लाइफ स्पैन, कितनी बार ये एसएसडी रीड राइट होगा, तो 1000 टाइम्स रीड राइटिंग था। अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन अगर किया उस रीड राइट टाइम्स को तो आपको लगभग 10 से 12 साल तक का लाइफ स्पैन ये एसएसडी में मिल सकता है। सो दैट्स ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही बड़ा सवाल था जो एंड कस्टमर डेफिनेटली जहां पे टेक्नो सेवी रहेंगे तो आपको ये पूछ सकते हैं कि क्या इस एसएसडी का लाइफ स्पैन जहां पे बहुत ही अच्छा है। सो डेफिनेटली 10 to 12 ईयर्स तक ये वर्किंग करता रहेगा। सो कहीं ना कहीं और क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग है, राइटिंग होती है एसएसडी के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू हाईलाइट यू। इज द रीड राइट स्पीड अफेक्टेड व्हेन द ईएसएसडी इज फुल? जैसे कि आप बात कर सकते हो कि स्टोरेज जहां पे हमें 300 GB का स्टोरेज मिल रहा है, एक 2 वीक्स की रिकॉर्डिंग्स वहां पे हो जाती है। सो कहीं ना कहीं रीड राइट स्पीड के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा अगर ये स्टोरेज इसका फुल हो जाता है तो। सो दैट्स अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्वेरी जो है। सो दैट आंसर इज नो। ओके, द रीड राइट स्पीड ऑफ eSSD इज मच फास्टर देन हार्ड डिस्क। यस, हार्ड डिस्क की कंपेयर करेंगे तो रीड राइट स्पीड जो है एसएसडी का इटसेल्फ ये बहुत ही फास्टर रहता है। तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि लोगों को लगता है कि भैया मेरी हार्ड डिस्क फुल हो गई तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग राइटिंग स्पीड के ऊपर इफेक्ट होता था, एसएसडी में क्या वैसा होगा क्या? सो नहीं, कुछ ऑप्शन वहां पे प्रॉब्लम होगा नहीं। द रीड राइट स्पीड ऐसे एसएसडी का बहुत ही ज्यादा है। इवन राइटिंग स्पीड इन्फ्लुएंस व्हेन द एसएसडी इज फुल, बट ओवरऑल स्पीड will still be higher than required for the recording and the storage purpose। तो कहीं ना कहीं आपकी एसएसडी फुल होने के साथ राइटिंग स्पीड वहां पे कम हो सकती है, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस और स्पीड है एसएसडी का वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता ही रहेगा। सो आपकी एसएसडी फुल हो रही है, नो डाउट आपके परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो दैट्स मोस्ट कॉमन क्वेरीज जो बहुत सारी आपको पता चली होगी। सो होप यू आर कनेक्टेड विथ मी। एंड कुछ पार्टनर्स ने हमने लिखा है सर हाउ टू इंक्रीज एसएसडी स्टोरेज। है डेफिनेटली इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं आता हूं उसके ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर डेफिनेटली इसका आंसर भी देखते हैं। हमारी टीम भी जो है आपको इस सवाल का आपको जवाब देगी। एंड वन ऑफ द पार्टनर ने कुछ लिखा है कि कुड यू प्लीज कंफर्म द स्टोरेज कैपेसिटी 300 GB, 400, 450 GB। यस, आई विल कम यू अगेन ऑन द स्क्रीन। स्टोरेज की बात करें कि जैसे हमने बताया कि अलग अलग टाइप्स के वहां पे स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। एग्जैक्टली कितना स्टोरेज मिलता है आपको, एसएसडी का स्टोरेज स्पेस कितना है और डेटा स्टोर करने के लिए आपको कितना स्पेस मिलता है, मैं सारे आपके सवाल का जवाब आज देने वाला हूँ। सो जहां पे हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन आपने डाला है बट कहीं ना कहीं मेरे प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके कुछ जो डाउट्स है ये सॉल्व हो सकते हैं। सो होप सभी को पता चल रहा है, आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो एंड क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस नए आज स्पेशल सेशन में टेक्नोलॉजी टॉक में। देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है इसके ऊपर। तो हमने एसएसडी के बारे में डिस्कस किया था, उसकी एसएसडी चिप है, ये कैसे काम करती है, रीडिंग राइटिंग स्पीड के ऊपर इफेक्ट होगा कि नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या एसएसडी चिप है, डीवीआर है, टेम्परेचर क्या सभी टेम्परेचर पे काम करेगा या कितना टेम्परेचर के वर्किंग टेम्परेचर पे ये काम कर सकता है। सो इज देयर अ लिमिट ऑन द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द eSSD? सो बहुत ही एक कॉमन सवाल जो है आप हमारे सभी पार्टनर के थ्रू जो सीसीटीवी को काम करते हैं, सीसीटीवी में जीडीवीआर इंस्टॉल करते हैं, एनवीआर इंस्टॉल करते हैं, अलग अलग जगह रहती है, वहां पे अलग अलग जगह में कहीं ना कहीं वेंटिलेशन कूलिंग ये मेंटेन करना पड़ता है। सो एसएसडी की वहां पे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जहां पे है ये कैसी है।
So the working temperature for EDVR is -10 degree Celsius to 45 degree Celsius. सो बहुत ही बेहतरीन जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो रहता है यहाँ पे ये रेंज में वहां पे काम करता है। EDVR जो है आपका SSD के साथ ये भी इस तरह इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में आपको यहाँ पे टेम्परेचर के साथ ये वर्क प्रॉपरली करेगा। सो योर पॉइंट इज क्लियर। बहुत सारे लोग पूछते हैं इस ये सवाल को। So warranty period support करेगा। Yes, Mr. Full Stop IT Solution, one of our partner from the Rajkot is joined over here. Warranty support, yes, the warranty support is also there. I will discuss on that part. And this product we have seen -10 degree to 45 degree तक यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपका चल सकता है। वर्किंग टेम्परेचर है इसका। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉमन क्वेरीज के ऊपर देखेंगे। हीट डिसिपेशन, जैसे कि आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द डीवीआर से उनको अगर ओपन करके आपने देखा तो उसके अंदर कुछ डीवीआर है, या कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर को प्रोसेसर चिप रहती है, उस प्रोसेसर चिप के ऊपर आपके यहाँ पे हीट सिंक्स वगैरह लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो या हीट डिसिपेशन है यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। सो सेम लाइक ऑफ क्वेश्चन वी आर गेटिंग ओवर हियर, हाउ इज द हीट डिसिपेशन वर्क इन केस ऑफ द ESSD DVR। हीट डिसिपेशन वर्क कैसे करेगा इस चीज के लिए। So talking about that, heat dissipation parts are on the ESSD chip itself. A fan is provided over there, starting over the 35 degree Celsius on the side of the DVR. So 35 degree Celsius के टेम्परेचर के बेस के ऊपर वहां पे कहीं ना कहीं ये जो फैन है ये भी प्रोवाइड किया है DVR के अंदर, एज वेल एज कहीं ना कहीं हीट डिसिपेशन के जो पार्ट्स है ये SSD के चिप के ऊपर ही हमें आपको मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं जहां पे टेम्परेचर की बात करें -10 to 45 डिग्री टेम्परेचर तक काम करेगा, फिर ज्यादा टेम्परेचर हो गया या कुछ अलग चीज है तो कहीं ना कहीं आपको जो है हीट अलार्म ये वहां पे DVR प्रोवाइड कर सकता है। सो देयर इज आल्सो हीट अलार्म व्हेन द डिवाइस इज ओवरहीटेड। सो आपको लग रहा है SSD DVR कनेक्टेड है, -10 to 45 डिग्री में काम कर रहा है, कोई कूलिंग फैन है, यस यहाँ पे फैन दिया है, प्लस एज वेल एज जो वहां पे हीट डिसिपेशन के पार्ट्स है वो SSD चिप के ऊपर ही है। फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज होता है, आपका जो DVR है यहाँ पे हीट अलार्म प्रोवाइड करेगा। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन लोगों को इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आता है, क्योंकि छोटा सा कॉम्पैक्ट डिवाइस है। हम चाहेंगे कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट डिवाइस पे कॉर्नर पे हर जगह जहां पे आपको सुटेबल हो वहां पे आप इस DVR को यूज कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं उसके लिए ये हीट डिसिपेशन का वर्क जो सवाल था बहुत सारे लोग पूछते थे। Moving to the next, स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई। ओके, देखते हैं क्वेश्चन उसके ऊपर क्या है। विल अनस्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ द EDVR। क्या लगता है? बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे ये DVR इंस्टॉल करते हैं। कहीं ना कहीं पावर की जो कंज्यूमशन है या पावर की लाइन है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। सम ऑफ द केसेस देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन द पावर इज नॉट दैट मच परफेक्टली वर्किंग। So on that cases, some kind of this DVR will get impact. So let's will look the answer of this. EDVR is a better option than traditional DVR in place with the constant power off or unstable power supply. Okay, EDVR is a better option than traditional device where unstable power supply जहाँ पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं पावर कंज्यूमशन है ये SSD चिप्स का वहाँ पे कम होता है, तो कहीं ना कहीं पावर का जो इफेक्ट है ये SSD DVR पे बहुत कम होगा। Second, EDVR consumes the less power as compared with other thing. EDVR passed power of test. In continuous power on and off test, there would be a recording intervals of less than a second, and which would not make provide a much more difference. तो कहीं ना कहीं पावर ऑन एंड ऑफ का स्टेट हुआ है जहाँ पे ज्यादा करके ये EDVR है, SSD DVR है, जैसे ही शट डाउन हो जाएगा वापस पावर ऑन हो जाएगा। कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग की जो सेकेंड से जो टाइम है ये बहुत ही कम पाया गया है, बहुत ही कम टाइम जो है आपका वहां पे मिस हो सकता है। सो विद दिस डेफिनेटली योर ESSD DVR will be much more stable whenever there power fluctuation at your location. So this is one more common question. Moving to the next question की बात करें, which type of installation condition is we are assuming?
इंस्टॉलेशन अगर आपको करना है कि कौन सी कंडीशन वहां पे होनी चाहिए एंड कौन सा डीवीआर वहां पे आप मतलब ये डीवीआर अगर यूज करते हो तो क्या वहां पे कुछ अलग है कि ये डीवीआर जो है जस्ट आपको टेबल पे ही रखना है, रैक में ही रखना है. सो लेट्स वी विल लुक ऑन दिस. Because of our anti-vibration design and a lightweight, safe, satisfy more installation condition. So definitely ये SSD चीप है, कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क जो रहती है वो मूव एंड वो अप डाउन हो जाती है, उसको थोड़ी सी भी वाइब्रेशन वहां पे मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क है इसका ऊपर का डेटा जो है डैमेज हो सकता है. बट SSD में वैसा कुछ है नहीं. So definitely because of the anti-vibration design is available with this eDVR, it can be kept on the stand, can be kept on the sidling, it can be played on the flat wise or the surface wise, opposite direction, or you can definitely it can be literally you can hang also anywhere. So lightweight आपका जो ये eDVR है इंस्टॉलेशन वाइज कहीं भी कॉम्पैक्ट रहेगा, एक स्मॉल साइज में आपको मिलता है. सो डेफिनेटली आप टेबल टॉप पे कहीं ना कहीं कॉर्नर पे या कहीं ना कहीं सीलिंग्स पे आप इजीली वहां पे फिट आउट कर सकते हैं. So for example, placed on the wall or fixed on monitor, even hang is also possible. लाइट वेट है, हार्ड डिस्क है नहीं इसके अंदर तो ज्यादा वजन नहीं रहेगा. डेफिनेटली कैन इजीली हैंग दिस डीवीआर एंड ये डेफिनेटली आपका ये डीवीआर जो है परफेक्टली वहां पे काम करेगा. सो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स वहां पे मिल रहा है, कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट वहां पे मिल रहा है जो पावर कंज्यूम्पशन भी प्रोवाइड कर रहा है और बहुत सारे वहां पे आपको फायदे दे रहा है. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जहां पे कितने दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी. सो हमारे वहां पे टीम टेक्नोलॉजी स्टॉक ने जहां पे आंसर लिखा है 14 डेज की यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग है रिकमेंडेड है. क्यों है, क्या है? डेफिनेटली कुछ ज्यादा दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बहुत सारे लोग ज्यादा दिन की रिकॉर्डिंग मांगते हैं तो डेफिनेटली वी विल कम ऑन दिस टॉपिक. ये सपोर्ट आईपी के हमारा करेगा ना करेगा, वन बाय वन आपको आंसर्स तो मिल ही रहे, बट स्टिल इस डीवीआर के ऊपर हम देखते हैं इंस्टॉलेशन का पॉइंट वहां पे जो से हमने निकाला था कि ये डीवीआर इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं. कुछ लोगों ने यहाँ पे सवाल किया ये डीवीआर बस, ट्रक, व्हीकल में भी यूज कर सकते हैं. मिस्टर किशन राठौड़ इन्होंने ये सवाल पूछा है. जैसे मैंने कहा कि ये डीवीआर इजीली आप कहीं पे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, एंटी वाइब्रेशन है, तो लोगों के मन में सवाल आ जाएगा कि ये ट्रक्स में, बसेस में ये डीवीआर चलेगा या नहीं चलेगा. So let's will look with our answers from Hikvision India. Can we use this DVR in vehicles or not? So talking about this, not recommended. We have a separate mobile DVR NVR which can be used in vehicle. So जैसे कि ये भले एंटी वाइब्रेशन है DVR, बट कहीं ना कहीं आप बात करोगे तो इस DVR पे पीछे आपको BNC कनेक्टर्स मिलते हैं, DC 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलता है जो जनरल प्रोडक्ट की तरह ही वहां पे स्टेबल कंडीशन के लिए काम करता है. कहीं ना कहीं आप बस में तो लगा पाओगे, आपको वहां पे एंटी वाइब्रेशन की फैसिलिटी जो है यहाँ पे मिल सकती है, बट कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस है ये आपको लूज हो सकते हैं और वो वहां पे डैमेज हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर रिकमेंड फॉर व्हीकल इंस्टॉलेशन गो फॉर द मोबाइल डीवीआर एंड मोबाइल एनवीआर प्रोडक्ट ओनली, बट फॉर द व्हीकल पर्पज वी आर नॉट रिकमेंड फॉर द eDVR. बट यस, if you still are want to use this DVR for the vehicle purpose with on your own risk, on your own responsibility, definitely you can use as comparatively with the normal DVR. This DVR will betterly work for that, but we not recommended to use this eDVR for the safety of the DVR purpose in school buses or trucks. So this is our recommendation to for all of you. So installation की बात करें तो जहां पे ये मोस्ट ऑफ द लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये eDVR है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, इंस्टॉलेशन जहां पे रिकमेंड नहीं है. कुछ लोगों ने सवाल किया था इस डीवीआर के स्टोरेज साइजेस का. ओके, स्टोरेज कितना मिल रहा है सर इसके अंदर? सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट 4 चैनल के आपको मॉडल्स बताए थे और एक 8 चैनल का मैंने मॉडल्स बताया था, राइट? सो इफ यू आर टॉकिंग ऑन द सेम क्वेश्चन, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज स्टोरेज साइज अवेलेबल इन eDVR. सो बात करें स्टोरेज साइज की, जहां पे आपको 300 GB का वहां पे डेटा साइज मिलता है. वहां पे कहीं ना कहीं आपके SSD का जो फिजिकल साइज रहता है ये 330 GB रहता है. ओके, सो जहां पे हमारे जो DVR प्रोडक्ट अवेलेबल है अभी मार्केट में, आपको 4 चैनल का मिलेगा और 8 चैनल का मिलेगा. 4 चैनल में आप कहीं ना कहीं देखोगे तो आपको 300 की जो
जीबी के स्पेस से ये डेटा स्टोरेज स्पेस मिलेगी, बट एक्चुअल में जो डीवीआर की एसएसडी की स्पेस है वो है 330 जीबी। कहीं ना कहीं 8 चैनल की बात करोगे तो जहां पे 512 जीबी की स्पेस मिलेगी आपको, बट राइटिंग जो है ये डेटा स्टोरेज के लिए आपको उसमें से 480 जीबी स्पेस मिल जाएगी। सो यस, 330 जीबी एंड 512 जीबी की ये एक्चुअल फिजिकल साइज है आपके एसएसडी डीवीआर की, उसमें से आपको ये डेटा स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है। सो टॉकिंग अबाउट द डेटा स्टोरेज, बहुत सारे लोगों को और कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सर 300 जीबी की स्पेस अवेलेबल है, विल इट डेफिनेटली वर्क, मतलब और उसको एक्सटेंड करना है, हार्ड डिस्क लगाना है, उतना स्पेस सफिशिएंट है नहीं मेरे लिए। सो जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ओनली, कि बहुत सारे लोगों के माइंड में यही भी क्वेश्चन है कि 300 जीबी 4 चैनल के लिए यूज होगा। सो डेफिनेटली हम जैसा कह रहे हैं कि 2 वीक्स की रिकॉर्डिंग मिल रही है जहाँ पे। सो मोस्ट कॉमन जो यूजर्स है, जो बहुत ही वहां पे स्मॉल यूजर्स जो है जहाँ पे 4 चैनल और 8 चैनल के डीवीआर में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हार्डली वहां पे 2 वीक्स की रिकॉर्डिंग चाहिए रहती है कम से कम। सो कहीं ना कहीं वो जो क्राइटेरिया है यहाँ पे ये ईडीवीआर फुलफिल कर रहा है, जहाँ पे आपको ये स्पेस के अंदर 2 वीक्स की डेफिनेटली यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है, based on the application and the scenario on which you have installed this camera. So कहीं ना कहीं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप कनेक्ट कर सकते हो क्या, ऐसे टाइप के भी सवाल आते हैं। सो उसी के बेस के ऊपर लेते हैं एक सवाल, does it support to extend external HDD? Okay, can we connect the external HDD और कैपेसिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, और is we can do the SSD extension for the storage time? So like में SSD to extend a storage time, SSD जो हम एक्सटर्नली लगा सकते हैं क्या, हार्ड डिस्क एक्सटर्नली लगा सकते हैं, या ये स्टोरेज को एक्सपांशन कर सकते हैं क्या? सो स्टोरेज स्पेस के रिलेटेड बहुत सारे लोगों की यहाँ पे सवाल थे। सो देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। नॉट इन द प्रिंसिपल, यस, जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल में है ही नहीं, क्योंकि आपका ये नॉर्मल 4 चैनल का यहाँ पे डीवीआर है सिंपल। Any additional external storage device cannot support, number one point which we want to inform you, because ये जो SSD है एम्बेड की हुई है आपके बोर्ड के ऊपर, कहीं ना कहीं आपको any additional external storage वहां पे आप नहीं लगा सकते। But if customer insists to be extended, it can be done by RMA with chargeable basis, but it's possible only and only RMA guidelines, and also it is a feature which is not suggested for you. So, जो आपके SSD चिप है जहां पे ये एक्चुअली आपको ये डीवीआर मिला है एक पर्टिकुलर स्पेस के साथ, उसको यूज कीजिए। फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन करता है, करंटली वी विल नॉट रिकमेंड फॉर दैट, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली इफ द RMA guidelines will support for that, will definitely get informed. Currently is eDVR is able to support around a 2-week storage. It's already fulfilled the entry level market very well. सो eSSD DVR अभी तक जो मॉडल लॉन्च किए, ये एंट्री लेवल मार्केट के लिए ये मॉडल है, ये आपको समझना होगा। उस हिसाब से आपको ये स्पेस मिली है और उसमें आपको 14 डेज का जो है रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मिल रहा है। सो होप यू हैव गॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस सिनेरियो इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग ऑन, इट इज अ मस्ट टू फॉर्मेटिंग द SSD व्हेन यूजिंग द eDVR। SSD आपको फॉर्मेट करना मस्ट है क्या जब भी आप ये eDVR आप यूज करोगे तब? सो जैसे कि SD कार्ड लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, हम पहले इनिशियल सेटअप पे उस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करनी पड़ती है, मेमोरी कार्ड को भी रिकॉर्डिंग के ऊपर उसको ऑन करनी है तो फॉर्मेट करनी पड़ती है, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है? So there is a simple activation process and a daily use process we have available with this DVR. There would be a reminder on SSD formatting. Click yes and it can be done within a seconds. So जैसे ही डीवीआर को बॉक्स से खोलते हो, आप कनेक्ट करते हो, पावर ऑन करते हो और वहां पे कहीं ना कहीं एक्टिवेशन पूछता है, उसी वक्त आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा एसएसडी को फॉर्मेट करने के लिए। सिंपली वहां पे क्लिक कीजिए, एसएसडी कुछ ही सेकंड्स के ऊपर आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। देन डेली यूजर कैन चूज अ फॉर्मेट टू इरेज द प्रीवियस रिकॉर्डिंग। अगर आपको रिकॉर्डिंग डिलीट करनी है, इरेज करनी है, आप फॉर्मेटिंग का ऑप्शन वहां पे यूज कर सकते हो। सो होप यू हैव क्लियर दिस आइडियाज, यू गॉट द आइडियाज अबाउट दिस कि ई डीवीआर के अंदर जहां पे कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे कि फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेट हम कर सकते हैं क्या। सो यस, इनिशियलाइजेशन जो है डीवीआर में पॉसिबल। यस, वन मोर एक्सटेंशन की बात करें कि 480 GB तक का डेटा स्पेस इसको मिलता है। कैन यू इंस्टॉल SSD मोर देन 480 GB?
दैट मीन्स अगर एंड कस्टमर के पास ये वहां पे कहीं ना कहीं एसएसडी वाला डीवीआर है, या आपके पास ये डीवीआर है, 480 जीबी तक की स्पेस वहां पे अवेलेबल है, कहीं ना कहीं आप आपके लेवल पे वहां पे कर सकते हो का ये स्पेस का एक्सटेंशन. So let's we will look for the answer on this. No, the storage capacity was fixed in DVR. Customer cannot change the SSD by themselves. So कहीं ना कहीं आप आपके लेवल पे वहां पे चेंज करने के लिए जाओगे, डेफिनेटली उस SSD के ऊपर का डेटा जो है ये डैमेज हो सकता है. So extension, we are not recommending for the extension for this kind of the DVR. We'll definitely always consult with the RMA. Definitely they will give you a proper solution and better guidance for your eSSD DVR. सो होप सभी को पता चला होगा एंड वन बाय वन क्लियर हो रही है आप लोगों की क्वेरीज. सो एवरीवन अगेन जस्ट आई एम कनेक्टिंग विथ यू मोर देन 10 मिनट्स. तो यहाँ पे कभी के हो चुके हैं हाफ एन आवर तक जहाँ पे है हो चुका है. बहुत सारे लोग कनेक्टेड है मेरे सेशन में. एवरीवन आर यू एंजॉयिंग द सेशन और नॉट? कम ऑन एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. क्या आपके मन के जो डाउट्स है ईडीवीआर को लेके ये सॉल्व हो रहे? क्या आपको जो आपका आंसर है एक्सपेक्टेशन वो मिल रहा है? कम ऑन, इफ यस प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो आई गेट द आइडिया यू ऑल आर कनेक्टेड विथ मी. जो लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं डेफिनेटली हमारी टीम टेक्नोलॉजी जो है आपके हर क्वेश्चन को चैट बॉक्स में देख रही है, नजर रख रही है और उस आपके हर क्वेश्चन को वहां पे पढ़ के समझ के आपको जो है वो आंसर वहां पे दे रही है. सो जहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं. मिस्टर नरिंदर जो है उन्होंने यस लिखा है. मिस्टर सरन राज है जो हमारे रेगुलर पार्टनर है टेक्नोलॉजी स्टॉक के व्यूअर्स है. मिस्टर आत्मीय सॉल्यूशन है, दीपक ठक्कर है, सुधीर कारले है. So Merry Christmas to all of you. This is a special Christmas session and from Hikvision India to all of you Merry Christmas. एंड आज का जो सेलिब्रेशन डे है जहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक में नॉलेज तो ले रहे हैं बट सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं. एंड इस खूबसूरत सेटअप के साथ मैं विनीत नार्वेकर आप सभी के साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक पे ईडीवीआर के मोस्ट कॉमन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ. एंड होप यू आर एंजॉयिंग द रिवॉर्ड पॉइंट ऑल्सो. 10 मिनट तक आप कंटिन्यूसली इस सेशन को देख सकते हो, कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हो इस वेबिनार तक. आपके ऐप के अंदर वहां पे कहीं ना कहीं 6000 पॉइंट्स वहां पे आपको मिल सकते हैं. बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं रिडीम करके, कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन आपको गिफ्ट्स वहां पे हिकविजन इंडिया की तरफ से आपको मिल जाएंगे. सो यू आर एंजॉयिंग द सेशन. यस, बहुत सारे लोगों ने वहां पे लिखा है यस यस. कुछ लोगों ने और एक सवाल है वाईफाई डोंगल. प्रामा क्यू सीरीज 4 चैनल डीवीआर हैज नॉट वाईफाई डोंगल ऑप्शंस. यस, अलग डीवीआर की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑप्शन है नहीं, बट यहाँ पे इस डीवीआर को क्या डोंगल है नहीं है, दैट आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सो क्वेश्चंस तो बहुत सारे लोग हैं. दैट मींस वो पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है कितना फेमस हो चुका है मार्केट में. बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है पूरे पैन इंडिया से. हमारे बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर के मैक्सिमम ये प्रोडक्ट अभी स्टॉक में अवेलेबल है. इन फ्यूचर बहुत सारी जगह पे ये स्टॉक में अवेलेबल हो जाएगा. कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे आपको इस डीवीआर से मिलेंगे. सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी हिकविजन ने यहाँ पे लॉन्च की है और जरूर आप इस नए जमाने में नए टेक्नोलॉजी के साथ इस सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी आपके इंडस्ट्री में आप एक प्रोफेशनलिज्म आप मेंटेन कर सकते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग ऑन दिस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन ले रहे थे बट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 300 GB सर 15 डेज का ही रिकॉर्डिंग मिल रहा है. क्या इन फ्यूचर में एनी चांसेस टू गेट द अ गुड स्पेस? सो देखिए आज eSSD DVR के ऊपर काम आपने शुरू किया है बट कल जाके आपके चैनल नंबर ऑफ चैनल तो बढ़ जाएंगे. अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर आपको सेम काइंड ऑफ द डीवीआर की रिक्वायरमेंट होगी. तो क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा है? यस, दैट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन. इज देयर अ प्लान ऑन eSSD विद बिगर स्टोरेज वॉल्यूम इन द फ्यूचर? सो बात करेंगे अगर eSSD DVR की. यस, there is a plan and definitely a higher capacity DVR is a plan to launch in the future and you will get also enjoy the much more number of days of recording on the eSSD technology. ये जो शुरुआत है, प्रोडक्ट तो अभी आया है और आपको ये यूज करना वहां पे जानकारी होनी चाहिए, यूज करने की वहां पे आदत होनी चाहिए. जैसे जैसे आप इसको यूज करने जाओगे इस टेक्नोलॉजी को आप एडॉप्ट करके फ्यूचर में आपके लिए हिकविजन इंडिया डेफिनेटली वहां पे हायर कैपेसिटी का जो है एसएसडी का डीवीआर डेफिनेटली आपके लिए वहां पे लेके आ जाएगा. So this is a future technology and we are working with the future technology only and only. Moving to the next question की बात करें, does it support 6 TB HDD? So लोग बोल रहे हैं कि सर eSSD तो हम यूज कर रहे हैं बट क्या हमारे पास
6 टीबी की हार्ड डिस्क वहां पे ऑलरेडी रहती है। क्या वो 6 टीबी की हार्ड डिस्क जो है ये हम यूज कर सकते हैं? क्या मैं एक्सटर्नली उसको कहीं ना कहीं लगा सकता हूँ या इंटरनली कहीं लगा सकता हूँ? So no, we are not support any extended hard disk for this. So better recommend जो भी स्टोरेज आपको एम्बेडेड चिप मिला है, एक लाइट वेट है, कहीं ना कहीं आपको डीवीआर का वहां पे स्क्रू से कैबिनेट खोलने की जरूरत नहीं है, हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिर हार्ड डिस्क को डैमेज हो जाएगा, वापस आपको वहां पे एनी कस्टमर वहां पे तकलीफ दे सकता है। कहीं ना कहीं कॉम्पेटेबिलिटी भी आपको देखनी पड़ती है, क्या आपका जो डीवीआर है उस डीवीआर को जो एसएसडी आपने या जो हार्ड डिस्क आपने परचेस की है वो कॉम्पेटेबल है या नहीं है। बहुत सारी चीजें, इससे अच्छा कॉम्पैक्ट सिंपल एक बेस्ट सोल्यूशन में चाहिए जहां पे डायरेक्टली आपको ये डीवीआर इसके साथ एसएसडी इसके अंदर ही आपको मिल रही है। ओके, ऑलराइट। सो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। आईपी कैमरा, आईपी कैमरा की बात करें तो जहां पे 4 चैनल का आपका डीवीआर रहेगा तो आपको एक आईपी कैमरा ऐड कर सकते हैं। 8 चैनल रहेगा तो आप 2 आईपी कैमरा वहां पे ऐड कर सकते हैं। बट व्हाट इज रिकमेंडेड आईपी कैमरा के लिए आ जाएगा क्वेश्चंस, एक एफएक्यूज में लेके आऊंगा कि ये सही नहीं रिकमेंडेड है या नहीं है। सो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ऑन योर स्क्रीन इज दैट व्हाट इफ ए कस्टमर आस्क्ड टू कीप अ 30 डेज रिकॉर्डिंग। ओके, 30 दिन की रिकॉर्डिंग वहां पे चाहिए, कैन बी एक्सटेंड द स्टोरेज एंड हाउ। लोग अलग अलग सवाल वापस पूछ रहे हैं कि जहां पे 14 डेज की मिल रही है, सो कैन बी एक्सटेंड द स्टोरेज फॉर द 30 डेज, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ जाता है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको तो क्वेश्चन आएगा ही, बट वी रिकमेंड नो, द कस्टमर कैन नॉट एक्सटेंड द स्टोरेज बाय देमसेल्फ एंड ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू अपग्रेड द एसएसडी चिप बाय विद द हाई कैपेसिटी वन। ओके, सो बिकॉज एग्जिस्टिंग आपकी जो चिप है उसके ऊपर डेटा की रिकॉर्डिंग हो रही है, सो बेटर बी रिकमेंडेड यू कैन यूज फॉर दैट। Currently, DVR support the 14 days recording and it's already fulfilled the entry level market very well. So कहीं ना कहीं entry level market में यहाँ पे eDVR जो है ये 14 days की यहाँ पे recording मिल रही है, यहाँ पे जो best है always and क्यों वहाँ पे आप वहाँ external storage में जाओगे, जैसे ही हम एक extra additional storage space के साथ जहाँ पे market में आएंगे, definitely you can go for that. For 4 channel, definitely this product is very best suitable for all of you. मूविंग टू द नेक्स्ट की एफएक्यूज की बात करेंगे, जहां पे स्टोरेज कैलकुलेशन की बात की है 330 GB एंड 480 GB ये मार्क के साथ ये डीवीआर है। एज पर द कैलकुलेशन इट वोंट सपोर्ट अप टू द 14 डेज स्टोरेज टाइम। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस कि मतलब आपके इस डीवीआर के अंदर 300 GB की स्पेस है, 480 GB की स्पेस है, फिर भी आपको इतने 14 डेज की रिकॉर्डिंग कैसे मिल जाती है? So this all will get calculated, it's all this get happen due to the scene adaptive bitrate control technology. The storage bit will self-adaptive based on the change on the circumstances. Then lower bit for static images for extend longer storage. Higher bit for the dynamic images to ensure the quality of the image. So कहीं ना कहीं ये जो DVR है ये self adaptive scheme technology के यहाँ पे काम करता है, जहां पे कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी बस ये ESS DVR में ही अवेलेबल है, जहां पे आपका जो सीन है कैमरा के सामने जो आपका सीन है उसको एनालाइज किया जाता है। इट एनालाइजिंग द सीन ऑफ द कैमरा, एज पर दैट इट पुट द डिवाइड द दिस पर्टिकुलर सीन इन डिफरेंट लेवल्स एंड बेस्ड ऑन दैट लेवल कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे बिटरेट को जो है अकॉर्डिंग टू योर सीन कंट्रोल किया जाता है और उतनी स्टोरेज स्पेस अलोकेट की जाती है। सो मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस एंड अश्योर्ड स्टोरेज स्पेस यू विल गेट इन 14 डेज रिकॉर्डिंग स्पेस बिकॉज ऑफ दिस सीन एडेप्टिव बिटरेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी के जरिए ही ये हो रहा है, जो आपके नॉर्मल डीवीआर पे यहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट, विल सीन एडेप्टिव कोडिंग बी अप्लाइड इन डीवीआर ऑफ अदर सीरीज? ये जो कोडिंग टेक्नोलॉजी है ये अदर सीरीज में भी एप्लीकेबल होगी क्या, जैसे जनरल डीवीआर इक्विजन के मिलते हैं वहां पे? नो, देयर इज नो प्लान टिल नाउ। द टेक्नोलॉजी वाज डिजाइन्ड स्पेशली फॉर eDVRs ओनली टू इंश्योर सफिशिएंट स्टोरेज विद इन द लिमिटेड स्पेस। कहीं ना कहीं आपको छोटे से स्पेस में एक सफिशिएंट स्पेस में वहां पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्टोरेज वहां पे प्रोवाइड करना था, तो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ डेफिनेटली हमें आना था मार्केट में,
सो ये जो सीन एडेप्टिव टेक्नोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं आपको जो है ये सिर्फ इसी डीवीआर पे मिल सकती है। सो टॉकिंग अबाउट दिस, हमने बात कर रहे थे ये टेक्नोलॉजी की। सो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें कि जैसे मैंने कहा था कि ये टेक्नोलॉजी में आपको जो है ये सीन एडेप्टिव, मतलब सीन को समझा जाएगा, लर्न किया जाएगा, एंड उस लर्निंग के बेसिस के ऊपर सीन को वहां पे बाइफरकेट किया जाएगा कि ये सीन कौन से लेवल पे आता है। कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ही क्राउड एरिया है तो ज्यादा लेवल पे जाएगा, या कोई मूवमेंट वहां पे नहीं है तो ये सीन है जो कम लेवल पे वहां पे रहेगा। based only on the scenario, it provide your bit rate, it adapt your bit rate, and based on this your SSD space will get utilized। बहुत ही नई टेक्निक, एक नए जमाने का डीवीआर है, नई टेक्नोलॉजी के साथ डीवीआर है। वो टेक्नोलॉजी को आज मैं आपके इस टेक्नोलॉजी टॉक सेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होप सभी को थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। सो लोगों के क्वेश्चंस तो बहुत है, हमारी टीम वहां पर टेक्नोलॉजी टॉक आंसर दे रही है बैकएंड में, बट स्टिल मोर एंड मोर वी आर टॉकिंग ऑन दिस क्वेश्चन। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग और कुछ स्टोरेज रिलेटेड सवाल करते ही है। कैन यूजर नो अबाउट द स्टोरेज स्पेस लेफ्ट एंड रिकॉर्डिंग पीरियड? अगर मैं इस डीवीआर करता हूं तो मुझे यूज करता हूं तो मुझे पता चलेगा मेरी कितनी स्टोरेज स्पेस बची है, या मुझे कितने दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्या मेरा ये डीवीआर बता पाएगा मुझे? यस, क्यों ना बता पाएगा। जैसे ही आप जाते हो, मैं आई विल शो यू एक्सप्लेन योर मेनू। दिस इज द मेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर DVR. It's called as a EUI, general configurations of this. When you go in the settings of the setting menu, जहाँ पे आप रिकॉर्ड सेटिंग में जाओगे, रिकॉर्ड पीरियड के ऊपर क्लिक करोगे, रिकॉर्डिंग पीरियड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एस्टिमेटेड पीरियड फॉर रेफरेंस, दैट इज द 14 डेज। सो आपका जो SSD DVR है वहां पे बता रहा है, इज टेलिंग टू यू 14 days of recording you will get it to store all the recording. So according to your space, according to your camera connected at your location, 4 कैमरास वहां पे लगे हैं, आपका जो सिनेरियो वो सेट है, वो सिनेरियो को लर्न करके सीन एडेप्टिव बिट रेट टेक्नोलॉजी ने वहां पे लर्न किया है उसको, और बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट दिस 14 days स्पेस ऑफ द रिकॉर्डिंग। सो कहीं ना कहीं जजमेंट लगाना जो है स्टोरेज कितने दिन का मिलेगा, ये डेफिनेटली ये नई टेक्नोलॉजी के जरिए अभी ESSD DVR में पॉसिबल है। इट्स पॉसिबल इन दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट, कैन IP कैमरा वर्क विद DVR? बहुत सारे लोग IP कैमरा के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कि 8 चैनल के लिए 2 IP कैमरा सपोर्ट करेंगे, 4 चैनल के लिए 1 IP कैमरा सपोर्ट करेगा। सो आई एम गोइंग टू ऑन दिस पर्टिकुलरली क्वेश्चन, यस, but not recommended as this would take much capacity, not able to promise 2 weeks of recording। जैसे कि आप देख सकते हो कि 4 चैनल का DVR है HG-HIB, उसके लिए आपको 1 IP कैमरा आप यूज कर सकते हो विद 2 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन। 8 चैनल का है, इफ इट इज 8 चैनल देन यू कैन गेट अप टू 5 MP रिजोल्यूशन व्हिच इज कैन गो फॉर द 4 MP और 5 MP। 2 चैनल मिल सकते हैं, और 4 चैनल का HQHR मॉडल रहेगा, कहीं ना कहीं आप 6 MP तक वहां पे इस IP कैमरा को ऐड कर सकते हैं। सो आपको पता चला होगा IP कैमरा कितने ऐड कर सकते हैं, कितने रिजोल्यूशन के IP कैमरा सपोर्ट करेंगे, बट स्टिल this kind of the product is having the SSD space, a limited space where the scene adaptive bitrate technology is using। so कहीं ना कहीं आप IP कैमरा यूज करते हो तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है, जो एनकोडिंग की टेक्नोलॉजी जो रहती है, ओके राइट नाउ जैसे कि आपको बहुत सारा पता है कि CCTV के इंडस्ट्री में कैमरा कनेक्ट करते हैं, DVR कनेक्ट करते हैं, कैमरास के जरिए वीडियो को कैप्चर किया जाता है, सिंपली वो वीडियो को DVR की तरफ भेजा जाता है, वीडियो इज गेट ट्रांसमिटेड ओवर DVR। Now DVR has a job to do the compression, to do the encoding, right? ये चीज होती है आपके एनालॉग HD और DVR की कंपैरिजन की बात करें तो, उस टेक्नोलॉजी की बात करें तो, बट कहीं ना कहीं IP प्रोडक्ट्स में आप जाते हो, IP कैमरा और NVR में आप जब जाते हो, तो जो ये कंप्रेशन है या जो एनकोडिंग है, ये आपके IP कैमरा की तरफ होता है। IP कैमरा itself do the job of encoding, जो job of compression, then a digital formatted data will get sent it, a digital data आपके NVR की तरफ भेजा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कंप्रेशन और इनकोडिंग जो है ये IP कैमरा की तरफ वहां पे हो रहा है। यही IP कैमरा वहां पे आप DVR के साथ कनेक्ट करोगे, वो IP कैमरा उसका वहां पे इनकोडिंग करेगा उसके लेवल के ऊपर, और उस डेटा को आपके DVR में स्टोर सेव करेगा।
तो जो सीन एडेप्टिव बिटरेट टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई थी, उस टेक्नोलॉजी का फायदा आप नहीं उठा सकते. So that's why we not recommended. But if you want to use, you can connect that much of IP camera with your eDVR. Hope you got understand a deep insight of the compression and the encoding. आप सभी को क्या चीज है, क्या डिफरेंस है, क्या लगाना है, क्या नहीं करना, कनेक्ट करना है, ये आपको पता चला होगा. सो हम बात कर रहे थे इसी टॉपिक्स के ऊपर जहाँ पे आईपी कैमरा का बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था. बहुत सारे लोग उसके बाद पूछते हैं कि सर इस डीवीआर के पीछे बैक पैनल पे और फ्रंट पैनल पे क्या है. जैसे कि लास्ट टाइम मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, हमारे सीईओ एंड एमडी आशीष सर भी उस टेक्नोलॉजी टॉक में जहाँ पे आए थे, हमने देखा था प्रोडक्ट को. तो प्रोडक्ट के बैक साइड पे कहीं ना कहीं 4 BNC कनेक्टर्स आपको मिल रहे हैं. 12 वोल्ट का पावर सप्लाई कनेक्टर था, यूएसबी पॉइंट था, HDMI एंड VJ इज अवेलेबल. सिंपल, दैट्स इट. Separately audio connectors was not there. So what we are recommending, go for the Hikvision inbuilt audio cameras. Okay, so that's why there is a question on your screen. Does it supports audio cameras or not? तो जहां पे हम बात करेंगे, yes, eDVR support Hikvision built-in mic cameras by default. So by default built-in mic cameras जहां पे है, ये Hikvision का ये eDVR है, सपोर्ट करता है. आज का ट्रेंड जो है ये built-in mic के साथ ही सभी जगह यूज करना है. तो Hikvision के जो built-in mic कैमरा जो है, डेफिनेटली ये आपके eDVR के साथ वर्क करेंगे. अलग से सेपरेटली ऑडियो कनेक्शन, एक्सटर्नल माइक का कनेक्शन है, वहां पे देने की आपको जरूरत नहीं है. कॉम्पैक्ट डीवीआर है, एक ही केबल का कनेक्शन करो, कोएक्सियल केबल के जरिए आपका वीडियो एंड ऑडियो वहां पे ट्रांसमिट हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट, डज इट सपोर्ट Hikvision कलरवू और स्मार्ट ड्यूल लाइट कैमरास? बहुत ही बेहतरीन सवाल जो है, जो हमेशा लोग पूछते हैं कि सर कलरवू कैमरा लगेगा, स्मार्ट ड्यूल लाइट कैमरा लगेगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं लगेगा? Okay, yes, it will support the Colorvue camera and the smart dual light camera as well as the motion detection 2.0 with is eDVR. So कहीं ना कहीं आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में ऐसे कैमरास है और आप eDVR के साथ उसको यूज करना चाह रहे हो, so why not, क्यों नहीं हम यूज कर सकते हैं. डेफिनेटली हम इनके साथ इसको यूज कर सकते हैं. सो होप सभी को पता चल रहा है कि क्या क्या नई जानकारी हमें मिल रही है. नया प्रोडक्ट है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करना तो हमारे सारे पार्टनर चाह ही रहे, पर बहुत सारे दिन से उनके मन में कुछ सवाल थे और उनके उस मन में जो सवाल थे उनके आंसर्स हम आज इस टेक्नोलॉजी टॉक में देने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी टीम टेक्नोलॉजी टॉक में भी बैकएंड से बहुत सारे सवालों का जवाब होपफुली आपको प्रोवाइड कर रही है और आपको आपके सारे सवालों का क्वेश्चन जहां पे है, ये इस टेक्नोलॉजी टॉक सेशंस में मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. ओके, जो बहुत ही कॉमन मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पे सवाल रहता है अबाउट वारंटी. हाउ मेनी इयर्स ऑफ वारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर eDVR? ओके, वारंटी पीरियड जो भी बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आप सभी के लिए. सो कहीं ना कहीं इसकी बात करें वारंटी पीरियड की, so 2 years of warranty we are providing here with this eDVR. It's a standard warranty provided by the company. 2 साल की वारंटी है, डेफिनेटली आप इसके थ्रू ये eDVR को यहाँ पे यूज कर सकते हो. सो बहुत सारे लोगों के मन में वो भी क्वेश्चन था, बट 2 साल की तो वारंटी है, बट कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ स्पैन, ओके, लाइफ स्पैन का जो इस डीवीआर का है, ये इस डीवीआर का लाइफ स्पैन, जैसे कि मैंने कहा SSD चिप जो है इसके अंदर है, उसकी जो लाइफ स्पैन है 10 साल तक वहां पे है. 10 से 12 साल तक लाइफ स्पैन उस मेन कंपोनेंट जो है इसका SSD चिप उसका रहेगा. तो डेफिनेटली आपको ये डीवीआर है, कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा एंड कस्टमर जो भी है आपके बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे आपके इस प्रोडक्ट के साथ. सो ये जो है कुछ मोस्ट कॉमन जो है क्वेरीज जो है आज मैंने मेरे एंड से आपको आपके लिए वहां पे प्रेजेंट किए हैं. बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे लोगों ने पूछे हैं, क्या ऑल पोर्ट यूजिंग द कोएक्सियल केबल्स? यस, डेफिनेटली ऑल ऑफ द पोर्ट कैन बी यूज द कोएक्सियल केबल. क्लाउड स्टोरेज और नास और क्लाउड स्टोरेज की बात करें, कहीं ना कहीं नेटवर्क केबल से थ्रू ये डीवीआर को आप नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो. तो थर्ड पार्टी स्टोरेज और नास आप डेफिनेटली वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको जो क्लाउड स्टोरेज है, जहां पे क्लाउड स्टोरेज कुछ डीवीआर में सेटिंग्स आती थी क्लाउड स्टोरेज करने के लिए, कहीं ना कहीं वो जो सेटिंग है यहाँ पे इस डीवीआर में आपको मिल नहीं सकती, बट फ्यूचर में डेफिनेटली विल रिकमेंड फॉर दिस सेटिंग.
Then lots of the queries are people are asking HDMI, VGA, TV out, which outputs are available. There is a HDMI and VGA outputs are available with this DVR. सो कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि यहाँ पे इस डीवीआर की वारंटी सपोर्ट है, देन आफ्टर पोस्ट सेल सर्विस जो है ये डेफिनेटली आपको कैसे मिलेगी. सो अकॉर्डिंग टू द आरएमए गाइडलाइंस देयर इंस्ट्रक्शंस डेफिनेटली विल गेट द बेस्ट सपोर्ट फ्रॉम आवर एंड टू गेट द प्रॉपर फंक्शनलिटी ऑफ दिस डीवीआर. ओके ऑलराइट, सो बहुत सारे पार्टनर्स जो यहाँ पे कनेक्टेड है. सो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लोगों का, अपग्रेड कर सकते हैं क्या? ओके सो दोस्तों मैं वही बताना चाहूंगा कि ये जो है एसएसडी, ओके, जहाँ पे कहीं ना कहीं आज के डेट में ये एम्बेडेड एसएसडी यहाँ पे प्रोवाइड की है, जिसको अगर अपग्रेड करना है तो फिर यहाँ पे एक एसएसडी सोल्डर्ड रहती है पूरी आपके बोर्ड के ऊपर. ओके सो कहीं ना कहीं आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हो तो आपका वहां पे डेटा जो है ये डेफिनेटली लॉस हो सकता है उस एसएसडी के ऊपर का, और बहुत सारे वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती है. But yes, in the future, your all inputs are welcome always, and will definitely have provided your all inputs to our R&D. And in the future, definitely Equation will come up with such kind of the upgradation things which you are expecting. आप जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो अपग्रेडेशन का, डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी भी मतलब ये अपग्रेडेशन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल मिलेगा इन फ्यूचर में, एंड कहीं ना कहीं आप उसका भी आगे जाके यूज कर सकते हो. फिलहाल के लिए यहाँ पे एंट्री लेवल मार्केट में आपको यहाँ पे ये जो सेगमेंट का प्रोडक्ट है ये बहुत ही काम में आएगा, जहाँ पे ये डीवीआर को आपके विलास के अंदर आपके एक स्मॉल शॉप्स पे जहाँ पे ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, अच्छा सा आर्किटेक्चर किया रहता है, कहीं ना कहीं आपको जो डीवीआर है ये आपको किसी फर्नीचर के अंदर या टेबल्स के अंदर या कहीं से छुपा के हाइड करके रखना पड़ता है, उस जगह पे यहाँ पे ये प्रोडक्ट बेहतरीन वहां पे काम करेगा. सो ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स, ये प्रोडक्ट के सारे एस्पेक्ट को हमने जाना, फंक्शनलिटी everything, and we are in the final solution. So hope सभी को पता चला होगा, आंसर्स मिले होंगे हमारे टेक्नोलॉजी टीम की तरफ से एंड मेरी तरफ से, एंड होप यू हैव एंजॉय दिस सेशन. बहुत सारे डेल से बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, डेफिनेटली आपको तो पॉइंट आ जाएंगे आपके प्रामा इंडिया ऐप के ऊपर. एंड लेट मी जस्ट गेट अंडरस्टैंड फाइनली कि हाउ डू यू लाइक दिस सेशन ऑन द ESSD प्रोडक्ट FAQs एंड कॉमन क्वेश्चन. कैसे लगा आज का आपको सेशन? क्या आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो गए एंड डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट यूज करना चाहोगे अभी मार्केट में और आपके एंड कस्टमर को रिकमेंड करना चाहोगे? कम ऑन, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. जो आप कस्टमर्स हमारे पार्टनर से रेगुलरली हमारे टेक्नोलॉजी टॉक में ज्वाइन होते हो और ये सेशन को देखते रहते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड पेशेंस. इतने देर तक आप मुझे सुनते हो और इस इन डेप्थ जो नॉलेज है कहीं ना कहीं हम देने की प्रोवाइड करते हैं. डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी टॉक की मदद से आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे यहाँ पे बहुत ही फायदा हो सकता है. सो बहुत सारे लोगों का यस आ रहा है वहां पे. ईश्वर इलेक्ट्रॉनिक्स, आनंद कुमार, वहां पे शशि, देन Saranraj, Mr. Saranraj is there, then Gaurav Kashyap is there, and SG Infotech, पंडित इन्फोटेक इज देयर, नवीन जोशी इज देयर, एम सर्विलेंस. इंडिया के सारे बहुत से सिटीज के अंदर से जहाँ पे ये आप पार्टनर सारे कनेक्टेड है, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जो है आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग मोर पॉजिटिवली विथ यू, विथ योर लव. एंड ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी टॉक के टॉपिक के साथ में फ्यूचर में 2023 में आने वाला हूँ आपके लिए. बट और कौन से टॉपिक के ऊपर आप इस टेक्नोलॉजी टॉक के सेशन जानना चाहते हो, प्लीज वो भी आप इस चैट सेक्शन में टाइप कीजिएगा. क्या आपको किसी और इक्विजन के नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. डेफिनेटली आई विल कम अप विद दैट टॉपिक नेम. एंड ऑल्सो हियर आई वांटेड टू टेल यू कि बहुत सारे लोग जहाँ पे है पॉइंट्स को है रिडीम करना चाहते हो, दिक्कत आती है. आई कैन अंडरस्टैंड, एंड डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग ट्राइंग टू गिविंग अ बेस्ट सर्विस फ्रॉम आवर एंड, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम जो पॉइंट्स है आप रिडीम कर सकते हो, और उसका जो फायदा है हमारे बैकएंड की टीम है जरूर आपको मदद करेगी, और जरूर आप तक वो रिवॉर्ड्स पॉइंट के जो हकदार है उनके पास जो गिफ्ट्स वहां पे पहुंचाने का काम जो है डेफिनेटली हमारी बैकएंड टीम ये जरूर करती रहेगी. एंड आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ. एंड वी आर गोइंग फ्रॉम द 2022 वी आर गोइंग इन 2023.
सो 2023 में नए जोश के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए एम के साथ, नए टारगेट के साथ कहीं ना कहीं हम एंटर करने वाले हैं। तो पूरे साल भर में जो टेक्नोलॉजी टॉक्स हमने चलाए और आपका जो सहयोग रहा, उस सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। बट कहीं ना कहीं हम आने वाले साल में भी इसी नॉलेज को लेके, बिकॉज लर्निंग जो है, ये लर्निंग और सीखना, ये लाइफ के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप हमेशा अगर कुछ ना कुछ लर्न करते रहोगे तो हमेशा आप कुछ ना कुछ अर्न करते रहोगे। सो कहीं ना कहीं यही एक एम को लेके जाके हम 2023 में भी आपके पास आने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी टॉक में, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, नए मोड के साथ, नए जमाने के टेक्नोलॉजी के साथ। होप यू हैव गॉट ऑल द आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चन रिलेटेड विद द ESSD। एंड सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। एंड अगेन विश यू ऑल वेरी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने देखा कि ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑल ऑफ यू मेरी क्रिसमस एंड विश यू ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम Hikvision India. Thank you so much for joining today's Technology Talk. This is Vineet Narvekar signing out. Thank you so much.